Hello everyone. I hope you all are doing great and I'm back again with another new topic of organic chemistry. अब आप सोचो कि आप एक चेयर पे बैठे हो और आपके हाथ और पैर अपनी जगह बदल ले. Will you be the same person? क्या आपके काम करने की फंक्शनैलिटी, आपकी कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी क्या सेम रहेगी या बदल जाएगी? ऐसा ही कुछ होता है स्टीरियोआइसोमेरिज्म में. तो एक कंपाउंड जिसके एटम्स की जगह बदल दी जाए, it becomes a different compound. So दो compounds, as for example, let us take this example. This is a carbon, tetrahedral carbon. अब इस compound में red atoms है right की तरफ और blue atom है left की तरफ. इस compound में red atom is pointed towards, it is oriented towards left side, blue atom is oriented towards right side. तो ये दोनों compound क्या है? These two are different compounds. अब इनके molecular formula same है, bonding arrangement same है, but spatial orientation in the space is different. So these two are called as stereoisomers. ये isomers है, but कैसे isomers है? Stereoisomers. Same thing is happening here as well as we can take this example also. आप इसमें देखिए, here red atoms are at a greater distance. अब इसी में अगर दूसरा कंपाउंड हमने ले लिया तो these two red atoms are at the same side, so they are at the less distance. तो ये जो दो कंपाउंड अभी हमने दिखाया, these two will also be called as stereoisomers. तो स्टीरियोआइसोमर्स वैसे आइसोमर को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो, मींस बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम हो, बट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस इज डिफरेंट. So isomers having same molecular and structural formula but different spatial orientation of atoms. These are called as stereoisomers. तो stereoisomers को हम categorize कर सकते हैं on a very broad basis into geometrical isomers, optical isomers and conformational isomers. Clear? Stereoisomers can also be categorized into in one another way, in a different way. इसको हम categorize कर सकते हैं into configurational isomers and conformational isomers. Configurational isomers are separable. सेपरेबल मतलब these two isomers को हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. क्यों सेपरेट कर सकते हैं? क्योंकि एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए we have to break the bonds. हमें बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा और उसे फिर से जोड़ना पड़ेगा, which requires huge amount of energy. तो ये within the reaction mixture ये खुद से पॉसिबल नहीं है. So that is why these two isomers are separable. ये interconvertible नहीं होता. But कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आर नॉन सेपरेबल. इसको हम प्योर फॉर्म में किसी एक आइसोमर को सेपरेट नहीं कर सकते. इवन इफ यू आर टेकिंग अ प्योर फॉर्म ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, वो विद इन द सॉल्यूशन मिक्सचर आसानी से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बिकॉज द एनर्जी गैप बिटवीन द टू आइसोमर्स आर वेरी वेरी लेस, जिसके बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे. इन दिस वीडियो लेक्चर बेसिकली वी आर गोइंग टू डील विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. सो इस दिस कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स can be categorized into enantiomers and diastereomers. Enantiomers उसे कहते हैं जो एक दूसरे का मिरर इमेज होता है. As for example this compound, these two compounds are mirror images of each other. अगर इसके बीच में आपने एक मिरर लगा दिया तो इसका इमेज ये बनेगा, बट ये दोनों की प्रॉपर्टीज अलग है. ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेम कंपाउंड हम इन्हें नहीं कह सकते. ये एक दूसरे से मैच तो करते हैं, बॉन्ड्स इनके सेम है, बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम है, बट ओरिएंटेशन अलग अलग है. तो इन्हें क्या कहेंगे? इनैंशियोमर्स. एंड वैसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दोज विच आर नॉन मिरर इमेजेस, दोज आर कॉल्ड एज डायस्टीरियोमर्स. तो डायस्टीरियोमर्स वैसे कंपाउंड होते हैं, एज फॉर एग्जांपल दिस कंपाउंड and this compound. These two are non-mirror images of each other. So this is called diastereomers. Enantiomers includes only optical isomers. Diastereomers includes geometrical isomers as well as optical isomers. I hope this categorization is clear. So in this particular video lecture, we are going to focus more upon geometrical isomers. इसमें हम geometrical isomers की बात करेंगे and the optical and conformational isomers we will be discussing in the next video lecture. क्योंकि हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स के स्पेशियल ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वी शुड नो द टेक्निक्स हाउ टू विजुअलाइज अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करने के लिए वी हैव टू नो कि वो जो 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है उसे इस 2 डायमेंशनल प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करें. तो फॉर दैट वी हैव सर्टेन projection formulas.
So it is projection formula होता क्या है? It is representation of a 3D figure on a 2-dimensional plane. Clear? तो पहले हम ये projection formula सीखेंगे and then we will go for discussing about the geometrical isomers or stereo isomers, because then only it will be easy for us to represent or to understand that molecule. So there are two types of projection formula we are going to study here. Conformational isomer पढ़ाने के पहले I will teach you again to another type of projection formula which is Newman and Sohor's projection. यहाँ हम सीखेंगे wedge and dash projection formula and Fisher's projection formula. So in wedge and dash projection formula, basically a compound has to be represented. This 3-dimensional compound has to be represented on this 2-dimensional figure. तो देखिए ये टेट्राहेड्रल कार्बन है. आई होप इट इज क्लियर. टेट्राहेड्रल कार्बन का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट आप सबको पता है, राइट? अगर एकदम आप सपोज क्यूब एक रूम में बैठे हो और उस रूम का स्ट्रक्चर है क्यूब, क्लियर? तो एट द सेंटर ऑफ द रूम यू हैव टू कीप द कार्बन एटम, और 2 बॉन्ड्स आप किधर को ओरिएंट करेंगे? 2 बॉन्ड्स विल बी ओरिएंटेड एट द 2 डायगोनली ऑपोजिट कॉर्नर्स ऑफ द सीलिंग, and next 2 bonds will be oriented at the other 2 diagonally opposite corners of the floor. So if you join all the bonds, that will be the tetrahedral carbon. So this is the structure of a tetrahedral carbon. अब ये 3-dimensional structure है. How can we represent it on a 2-dimensional figure? That is by a formula which is called wedge and dash projection formula. देखो wedge and dash projection formula क्या होता है? We have to represent this compound समथिंग लाइक दिस. यहाँ ये जो 2 बॉन्ड है, इन दोनों बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन दिस प्लेन ऑफ द बोर्ड. इसमें एक बॉन्ड प्रोजेक्ट कर रहा है किधर? आउटसाइड, और दूसरा बॉन्ड प्रोजेक्ट कर रहा है इनसाइड द प्लेन. ओके, सो लेट मी ड्रॉ दिस. वी हैव 2 कंपाउंड्स, ये ब्लू एंड ग्रीन बॉल्स विच यू कैन विजुअलाइज हियर. ये 3-dimensional स्ट्रक्चर. These 2 bonds I am going to draw in the plane. So I am going to draw these 2 bonds in the plane. One bond is pointed towards the observer. ये ऑब्जर्वर की तरफ को प्रोजेक्टेड है, मतलब इट इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन. तो जो भी प्लेन के बाहर को आ रहा है बॉन्ड, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड वेज. दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड वेज. एंड द बॉन्ड विच इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द प्लेन. अब देखिए ये जो व्हाइट एटम है, व्हाइट बॉल, वो किधर को जा रहा है? दैट इज गोइंग इनसाइड द प्लेन. अगर ये दोनों को हमने इस प्लेन में लगा दिया तो एक बॉन्ड प्लेन के बाहर आएगा, दूसरा प्लेन के अंदर जाएगा. सो द बॉन्ड विच इज गोइंग इनसाइड द प्लेन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ ब्रोकन डैश. Is it clear? So this is the representation of a tetrahedral atom. Suppose ये चारों ग्रुप्स लगे हैं, suppose A, B, C, D. तो इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा. दिस इज कॉल्ड वेज एंड डैश प्रोजेक्शन. तो यहाँ ध्यान रखने या याद रखने वाली चीज क्या है कि ये जो 2 सॉलिड लाइंस है, दिस इज इनसाइड दिस प्लेन. ये जो सॉलिड वेज है, दिस वेज इज प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन, और ये जो ब्रोकन डैश है, that is projected inside the plane, and all the angles here are 109.5 degree क्योंकि टेट्राहेड्रल एंगल है. क्लियर? तो चाहे टेट्राहेड्रल एंगल ना हो, हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जितना भी सिंगल लाइंस होता है दैट इज इन द प्लेन. जो सॉलिड वेज होता है वो प्लेन के बाहर को निकला होता है, और जो ब्रोकन डैश होता है वो प्लेन के अंदर को होता है. इज इट क्लियर? सपोज वी हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस. अगर हमने दिखा दिया if we are drawing it like this, तो आप you can understand, suppose यहाँ ग्रुप लगा है CH3H, this is CH3H. तो ये क्या है? This is projected outside the plane, this is projected outside the plane, ये बाहर को निकला है, and this is projected inside the plane. So this is sp2 hybridized carbon. मतलब ये एक planar structure होगा, और ये कैसा प्लेन होगा? ये कुछ इस तरह का प्लेन होगा. क्लियर? तो एक इस प्लेन के मिथाइल ग्रुप प्लेन के बाहर को निकला है, हाइड्रोजन प्लेन के अंदर को है, एंड दिस मिथाइल ग्रुप ये प्लेन के बाहर को निकला है, एंड दिस इज इनसाइड द प्लेन. सो दिस इज कॉल्ड वेज एंड डैश प्रोजेक्शन फॉर्मूला. नाउ वी हैव अनदर काइंड ऑफ प्रोजेक्शन फॉर्मूला व्हिच इज कॉल्ड फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला.
तो ये फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? फिर अब इसी कंपाउंड को जो हमने कुछ इस तरह से कंपाउंड रखा था, राइट, अब इस कंपाउंड को हमने रोटेट कर दिया, कुछ इस तरह से कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये दो बॉन्ड बाहर को आ गए, दो बॉन्ड अंदर को आ गए. इट इज समथिंग लाइक, आप समझ लो कि ये जो ब्लैक कार्बन एटम है, दैट इज ओनली प्रेजेंट इनसाइड द प्लेन. Is it clear? I hope you are able to visualize this. You can just visualize कि this black carbon atom, ये सिर्फ कार्बन एटम को हमने इस प्लेन में रखा है, तो दो बॉन्ड किधर को आएंगे? बाहर को निकले होंगे, और दो बॉन्ड, ये दोनों जो बॉन्ड है वो अंदर को जा रहे हैं. तो ये जो बाहर को निकले हैं, दिस इज ऑलवेज वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस. वी कैन जस्ट रिप्रेजेंट कार्बन एटम इनसाइड द प्लेन, और दो बॉन्ड बाहर को निकले हैं, तो ये जो बाहर को निकले हैं इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ हॉरिजॉन्टल लाइंस. So whatever we are showing on the solid wedge, मतलब it is outside the plane, और ये जो broken dash है, it is represented inside the plane, ये plane के अंदर को है. मतलब the compound is observed something like this, कि two bonds which are present outside, ये दो bond plane के बाहर को निकला है, और ये दो bond plane के अंदर को है. तो इसको हम फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी विल जस्ट रिप्रेजेंट विथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस. यहाँ पे दिस क्रॉस विल रिप्रेजेंट अ कार्बन एटम, क्रॉस रिप्रेजेंट करता है एटम को, और ये जो बाहर, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर प्रोजेक्टेड आउटसाइड द प्लेन. Horizontal lines are projected outside the plane. Clear? And जो vertical lines है, these vertical lines, these are something like this. This is projected inside the plane. The vertical lines are projected inside the plane. It is projected inside the plane. Clear? The horizontal lines बाहर को निकले हैं, और वर्टिकल लाइंस अंदर को है. तो आप इसे याद रख सकते हैं, कभी कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप याद रख लीजिए. जस्ट रिमेंबर योर मॉम. You remember your mom? Mom is just spreading her hands to, she is asking you to give a sweet hug. तो आप इसे याद रखो कि ये hugging hands जो आपको दिख रहा है, that is the horizontal lines. तो इससे आप ये याद रख सकते हैं कि horizontal lines हमेशा बाहर को है, और दोनों vertical lines plane के अंदर को है. Clear? So that is, the vertical lines are always away from the observer, and the horizontal lines are always towards the observer. So you have to remember this, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा the various stereoisomerism, और जितना भी मॉलिक्यूल्स, हम मॉलिक्यूल्स के ओरिएंटेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, you will be very well